Hello students, today we will start with a new topic that is kingdom fungi. जब हमने आर एच वुटेकर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच वुटेकर में पढ़ा है कि देयर आर 5 किंगडम्स. फर्स्ट इज मोनेरा, दैट इज बैक्टीरिया, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई एंड देन प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो आज हम थर्ड किंगडम को पढ़ रहे हैं, दैट इज किंगडम फंजाई. तो किंगडम फंजाई की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, दैट इज माइकोलॉजी. Study of fungus is known as mycology. Now this is a third kingdom according to the R.H. Whitaker. और इसमें क्या था कि these are multicellular eukaryotic achlorophyllous organism. Multicellular, they are multicellular, but only one fungus is there, that is यूनिसेलुलर. इसकी एक एक्सेप्शन है. ऑल द फंगस आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट वन, दैट इज यीस्ट, सैक्रोमाइकस सर्विसाई. द साइंटिफिक नेम यीस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस. यूकैरियोटिक है. एक्लोरोफिलस मीन्स दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दे शो abundant diversity. Abundant diversity, that is they are found everywhere, in the soil, in the ice, in water, everywhere these fungus can be found. So we can say these are cosmopolitan. Cosmopolitan means they are found everywhere and mostly they are found in warm and humid environment. आई होप आपने जूनियर क्लासेस में ये एक्टिविटी की होगी कि आपने एक ब्रेड लिया, ब्रेड के ऊपर वाटर स्प्रिंकल किया और उसको किसी शेडी रीजन, जनरली हम प्रेफर करते हैं कि किचन में रखें क्योंकि वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशंस दोनों मिलती है. तो you will see the long hyphae like thread like structures. That thread like structures are of fungus rhizopus. एंड सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑरेंज लिया, ऑरेंज को प्रिक कर दिया और सेम ह्यूमिड कंडीशन में, शेडी कंडीशंस में रख दिया जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट अवेलेबल नाउ, ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशंस मिलेंगे वहाँ पे. तो अ लेयर ऑफ ग्रीन कलर appears on that and the colony of that green color is basically the Penicillium fungus. So we can easily see the fungus growing on a rotten fruits and vegetables also. Now बॉडी ऑफ फंगस, अभी हमने एक टर्म यूज की हाइफे. बॉडी इज थ्रेड लाइक. फंगल बॉडी इज थ्रेड लाइक, कॉल्ड दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफे. सी हाइफे. नाउ the fungus has these thread like structures and these thread like structures are called hyphae. Long thread like structures are present in a फंगस नोन एज हाइफे. सिर्फ एक फंगस दैट इज यीस्ट जो कि सेलुलर फंगस है, जो नॉन हाइफे होंगे क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, इस तरह की फंगस होगी. बाकी सभी फंगस हाइफे की फॉर्म में होंगी. और अब ये जो हाइफेज हैं इनके बीच में अगर सेप्टाज है, इस तरह से पार्टीशंस हैं, एंड दीज पार्टीशंस आर कॉल्ड सेप्टाट. तो एंड दे हैव यूनिन्यूक्लिएट, वन न्यूक्लियस इन ईच सेप्टा. सो दिस इज सेप्टेट फंगस. माइसीलियम इज हाइफे इज septate and here no septa is there, so this is multinucleated hyphae. This is called aseptate and this condition is also known as cenocytic. Cenocytic means multinucleated. यहाँ पे न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करके हाइफे को क्या बना रहा है, मल्टीन्यूक्लिएटेड बना रहा है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड cenocytic condition. And group of hyphae, the fungus always exists in the large number of network of the hyphae, just like this. This is a group of hyphae. It may be branched or unbranched. So in some of the fungus it is branched, this hyphae is branched, and some it is unbranched. This group of hyphae is known as mycelium. So हमने क्या पढ़ा कि fungus are multicellular, eukaryotic and achlorophyllous. Next, they are cosmopolitan, can be found everywhere, mostly in warm and humid condition, and they are thread like, and these threads are called hyphae, or hyphae can be septate or aseptate,
or branched or unbranched, and the group of hyphae is known as mycelium. Next point, cell wall. They have cell wall, and cell wall is made up of, obviously cell wall is of any fungus is made up of carbohydrate, and that carbohydrate is chitin. What is chitin now? It is homopolymer of, अगर हम इसकी केमिकल बात करें तो ये केमिकली किस चीज़ का है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. इन शॉर्ट हम इसे क्या लिखते हैं? NAG, N-acetyl glucosamine. It is a homopolymer, and that is in short is called chitin. Then cell wall is made up of chitin. And now the fourth point हम next करते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि हमने इसकी बॉडी की बात कर ली, इसकी डाइवर्सिटी की बात कर ली, हैबिटेट की बात कर ली, सेल वॉल की बात कर ली. अब इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं. तो these are achlorophilous. अगर ये क्लोरोफिलस है तो ये ऑटोट्रॉपिक नहीं हो सकती, ये क्या होंगी? हेट्रोट्रॉप्स. सो दी फंगस आर हेट्रोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉप्स भी किस तरह के? मोस्ट ऑफ द फंगस आर saprophytic. Saprophytic means they survive on dead decaying organic matter and shows extracellular digestion. Extracellular digestion means they releases digestive enzymes out of the body and then degrade, digest that material and then engulf that. That is called extracellular digestion. And some of the fungus are parasitic also. Parasitic means disease causing. Most of the fungus causes disease to plants, animals as well as human beings. So अब हमने इसके न्यूट्रिशन की बात की कि न्यूट्रिशन ये हेट्रोट्रॉप्स हैं, उसमें ये पैरासिटिक हो सकती हैं. पैरासिटिक में दे सर्वाइव ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड समटाइम दे कॉल्ड डिकम्पोजर्स ऑल्सो, एंड सम ऑफ द फंगस आर पैरासिटिक ऑल्सो. नाउ वन मोर थिंग, दे कैन सर्वाइव इन द फॉर्म ऑफ symbiotic association as well as mycorrhizae. Now what is symbiotic relationship? हमने पहले भी पढ़ा है. Symbiotic relationship means when two organisms are living together and both are benefited to each other. तो algae और fungus का जो symbiotic relationship होता है हम उसे क्या कहते हैं? Lichens. And then mycorrhizae, the association of fungus with the roots of higher plants is called mycorrhizae, and most of the fungus show mycorrhizae as a relationship with the roots of higher plants. So this is the general features of the kingdom fungi. Now we will talk about the reproduction in the fungus. So fungus shows asexual as well as sexual reproduction. Let's see. Reproduction in fungus. अगर हम फंगस की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो फंगस वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का वो क्या है फंगस के लिए? फ्रेगमेंटेशन एंड देन बडिंग एंड फिजन. अब ये जो बडिंग और फिजन है वो हाइफे में कैसे होगी? हाइफे वाली जो माइसिलेटेड फंगस है जिसमें माइसिलियम बनता है वो वेजिटेटिव मेथड में फ्रेगमेंटेशन शो करेगी. जो हमारी यीस्ट जो नॉन माइसिलेट फंगस है जैसे कि वो सेलुलर फंगस है तो दैट फंगस कैन ओनली रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग एंड फिजन. नाउ एसेक्सुअल, हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एसेक्सुअल मेथड शो कर रहा है तो वो उसमें क्या बनाएगा? एसेक्सुअल स्पोर्स बनाएगा. तो फंगस में किस तरह के स्पोर्स बनते हैं? वन इज स्पोरेंजियोस्पोर, जियोस्पोर, and another is conidia. Now what is the difference between these two types of spore? Sporangiospores are produced endogenously. Endogenously means there is a one sac like structure. This is a sac like structure. In this sac, inside that
spores are produced. These type of spores are called sporangiospores. Now these sporangiospores are further of two types, zoospores and alpanospores. Zoospores have flagella. फ्लैजिला है तो ये मोटाइल होंगे. एंड अल्पैनोस्पोर्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड. अगर इनके पास फ्लैजिला नहीं है तो ये क्या होंगे, नॉन मोटाइल. तो ये मूव कैसे करेंगे, पैसिवली थ्रू एयर और वाटर करंट. नाउ कोनिडिया स्पोर्स, दीज कोनिडिया स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली. एक्सोजीनियसली कैसे, सी देयर इज वन hyphae of a fungus and on the tip of that hyphae spores are produced outside, and most of the conidia spores are generally non-motile, and the hyphae on which this appears is called conidiophore. Conidiophore is a hyphal segment on which conidia are produced. So now sexual reproduction in fungus. अब हम पढ़ते हैं कि फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या डिफरेंट स्टेप्स होंगे. तो देर आर 3 डिफरेंट स्टेप्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस. वन इज प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी एंड देन द मियोसिस. These are the 3 steps that occur during the sexual reproduction in fungus. See होगा क्या, this is one of the fungus cells or a hyphae of a fungus. This can be in a form of hyphae or a cell. तो मेन बॉडी जो होती है प्लांट फंगस की वो क्या होगी, हैप्लॉइड. हैप्लॉइड स्टेट में होगी. ये दो हैप्लॉइड फंगस है. अब इनमें सबसे पहले क्या होगी, प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ देयर प्रोटोप्लाज्म. देयर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज. अगर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, हैविंग अ 2 न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. ठीक है. जैसे ही प्लाज्मोगैमी होगी देयर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज and then immediately karyogamy occur, fusion of their nucleus, diploid nucleus बन जाएगा. But most of the fungus shows this type of sexual reproduction, but some of the classes, for example Ascomycetes and Basidiomycetes, these are the different classes of fungus. उनमें क्या हो रहा है कि प्लाज्मोगैमी होने के बाद कैरियोगैमी थोड़ा लेट हो रही है. लेट हो रही है मीन्स देयर इज अ टाइम गैप. टाइम गैप होने की वजह से हमें ये स्टेज इजीली विजिबल होगी. तो अब इस स्टेज को कुछ नेम देंगे. तो दैट इज कॉल्ड डाइकैरियन स्टेज. जो लोअर फंगस है जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, उनमें ये डाइकैरियन स्टेज विजिबल नहीं होगी क्योंकि प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी. बट एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज ऐसी फंगस हैं जिनमें प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी के बीच में कुछ टाइम गैप आएगा, जिस टाइम गैप की वजह से हमें क्या नजर आएगा, डाइकैरियन स्टेज. एंड देन कैरियोगैमी आकर. अब कैरियोगैमी में फंगस क्या होगी, है डिप्लॉइड. बट हमें फंगस कैसी होती है, दिखती है हैप्लॉइड. तो अब उसमें क्या होगी, मियोसिस. मियोसिस होगी तो कितने सेल्स बनेंगे, 4. सो वी विल गेट 4 फंगल हाइफे विद ईच विद हैप्लॉइड नेचर. सो वी विल गेट 4 fungal hyphae with haploid nature. So this is how the sexual reproduction occur in the fungus. Now we will study about the classification of fungus. क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस. जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं फंगस को तो हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ माइसीलियम. टाइप ऑफ माइसीलियम कह रहे हैं तो मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी. एंड देन सेक्सुअल स्टेजेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रही है. और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो वहाँ पे कुछ स्पेशल स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी. वो फ्रूटिंग बॉडीज कैसी होंगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज. सो लेट्स क्लासीफाई द फंगस. हमने फंगस को जब क्लासीफाई किया तो 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया. फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, टाइप ऑफ माइसीलियम, कि वो माइसीलियम एसेप्टेट है
या फिर सेप्टेड, ठीक है। एसेप्टेड मीन्स सिनोसिटिक हाइफे इन अ फंगस। तो एसेप्टेड फंगस को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लोअर टाइप ऑफ फंगस, और इसमें एक क्लास है दैट इज फाइकोमाइसिटीज। नाउ दिस फाइकोमाइसिटीज इज फर्दर classified into two. One is oomycetes and then zygomycetes. This oomycetes is also known as algal fungi because this is generally found in water, that's why algal fungi. And this zoomycetes is also known as conjugation fungus because this type of fungus reproduced generally by the conjugation method, that's sexual reproduction is by conjugation method. तो पहले हमने asepted fungus on the basis of morphology and then on the basis of sexual stages उसको further classify किया oomycetes and zygomycetes. अब इधर आ जाते हैं सेप्टेड फंगस। सेप्टेड फंगस जो हमारी है इसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया डिफरेंट क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन known, stages of sexual reproduction is known, how they reproduce sexually, and sexual reproduction unknown, कि हमें नहीं पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। देन इसके बेसिस पे जब हमने डिवाइड किया तो वन इज एस्कोस्पोर्स। सो सी टाइप ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे कैसी है, सेप्टेड। फिर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है तो इस यहाँ आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं नोन तो इधर। अब फ्रूटिंग बॉडी, अगर फ्रूटिंग बॉडीज एस्कस की फॉर्म में बन रही हैं तो दे आर एस्कोस्पोर्स, एंड अगर वो बेसिडियम है तो बेसिडोस्पोर्स। अब एस्कस और बेसिडोस्पोर्स, बेसिडियम में क्या डिफरेंस है वो जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। एस्कोस्पोर्स आर ऑल्सो नोन एज, sorry, we call it ascomycetes. Ascospores are produced, ascomycetes. Here ascospores are produced and basidospores are produced, so basidomycetes. Basidomycetes. Ascomycetes fungus is also known as sac fungus because ascus is a sac-like structure, and then this is called club fungus. And where the sexual reproduction stages are not known, this is called deuteriomycetes, where sexual reproduction stages are not known, and this type of fungus is called fungi imperfecti. Imperfect fungus. So this is a classification of fungus on the basis of their type of mycelium, sexual reproduction stages and fruiting bodies. Now we will study first Phycomycetes. Phycomycetes, the first division of the fungus. तो Phycomycetes में सबसे पहले हम हैबिटेट की बात कर लेते हैं। हैबिटेट की अगर बात करें तो मोस्टली दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट और they are found on wood in damp condition, damp and moist conditions, and some are parasitic on plants also. कुछ फंगस पैरासिटिक है प्लांट्स पे। माइसीलियम अभी हमने पढ़ा कि ये लोअर क्लासेस ऑफ फंगस है। सो सिनोसिटिक, मल्टीन्यूक्लिएटेड, एसेप्टेड, सिनोसिटिक है, एसेप्टेड है एंड ब्रांच्ड। क्लियर, दिस इज अ माइसीलियम। सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज सेम है। सो फाइकोमाइसिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हैबिटेट और माइसीलियम सेम, बट जब हम इसकी सेक्सुअल स्टेजेस या एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेजेस की बात कर रहे हैं तो हमने इस फाइकोमाइसिटीज को किस दो क्लासेस में डिवाइड किया था। वन इज ओमाइसिटीज एंड अनदर इज जाइगोमाइसिटीज। सो अगर ओमाइसिटीज की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे हो रही है, थ्रू जूस्पोर
endo produced endogenously and are motile spores, or conidia exogenously non motile spores. And in zygomycetes asexual रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है? अल्पैनो स्पोर्स के थ्रू, मीन्स प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली बट नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड. अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है? आइसोगैमस कंडीशन है, एंड दैट आइसोगैमस कंडीशन इज डन बाय, आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट. And in zygomycetes it is oogamous condition, and that oogamous condition, oogamous sexual reproduction is done by gamitangial copulation, or we can say conjugation. तभी हमने इसको क्या कहा था? conjugation fungus. Now what is the difference between the terms isogamous and oogamous? Iso means same, जब जो सेल्स हैं, जो न्यूक्लियाई जो फ्यूज होने हैं वो सेम हाइफे पे प्रोड्यूस होंगे तो आइसोगैमस कंडीशन. एंड इन ज़ाइगोमाइसिटीज द हाइफे और द माइसीलियम आर डिफरेंट. सी हाउ इट अकर्स. इन आइसोगैमस गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट वन हाइफे इज देयर, ये हाइफे एसेप्टेड हाइफे, इस पे गैमेटेंजियाज बनेंगे. गैमेटेंजिया मीन्स जिसमें न्यूक्लियस मूव करके आएगा, जिसको प्लाज्मोगेमी शो करनी है. सो दीज गैमेटेंजिया इंक्रीजेज इन साइज स्लोली and then fuse, and when the firstly plasmogamy occur and then immediately karyogamy occur. So this is isogamous gametangial contact. In oogamous condition there are two different hyphae, and on different hyphaes gametangia are produced. Clear? And these gametangia fuse and form. Firstly plasmogamy occur and then dikaryon stage immediately changes into the karyogamy and diploid nucleus, and the diploid nucleus undergo meiosis to form the four different hyphae. So this is oogamous through gametangial copulation. Copulation कैसे हुआ? On two different mycelium और यहाँ पे on a same hyphae. So this is how the sexual reproduction occur in the फाइकोमाइसिटीज़. फाइकोमाइसिटीज़ में अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो oomaicities के हमारे एग्जाम्पल हैं फाइटोफ्थोरा infestans is an example of oomaicities that causes the disease in a potato, and zygomycetes के हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल होगा rhizopus mucor. The rhizopus is a fungus that is found on a bread. Now this is phycomycetes. Next we will do ascomycetes. ascomycetes, जब हम ascomycetes की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले habitat, ये these are saprophytic decomposers. saprophytic decomposers का क्या मतलब होगा? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे मिलेंगे हमें ये फंगस. एंड देन सम आर पैरासिटिक ऑल्सो, and some are corpophilous. Corpophilous fungus, the fungus that is found on a cow dung. और हमने अभी बात की थी एक एक्सेप्शन की कि yeast is the only fungus that is unicellular. तो it also include unicellular fungus. Yeast is found in the ascomycetes. क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं इसके माइसीलियम की. इसका माइसीलियम कैसा है? तो अभी हमने जब क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि सेप्टेट माइसीलियम होगा, एंड दिस इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसीलियम इज फाउंड. एंड देन वन मोर थिंग, यहाँ पे जो ये इसका ये सेप्टा है, ये सेप्टास में छोटे छोटे पोर्स हैं. Pores are present in septas. Pores are present in septa. इससे क्या होगा? वो बिल्कुल माइन्यूट पोर्स हैं जो न्यूक्लियस को तो मूव नहीं करने देंगे, बट
कैन शेयर द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एक सेप्टा से दूसरे सेप्टा में मूव कर सकता है। दिस इज अबाउट द माइसीलियम। नाउ asexual reproduction. Asexual reproduction occur through conidia spores and now sexual reproduction, जिसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। हमने अभी बात की थी कि यहाँ एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एस्कोमाइसिटीज। और मेथड कौन सा होगा रिप्रोडक्शन का, दैट इज गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट कब होता है, जब आइसोगैमस कंडीशन होती है। आइसोगैमस मीन्स द hyphae, two different hyphae or a same hyphae of same mycelium are produced. Here this is one mycelium, one hyphae, and this is another hyphae from the same mycelium comes in contact, and this is how they fuse. This fusion is called plasmogamy. Now here this is plasmogamy occur. प्लाज्मोगैमी हुई। प्लाज्मोगैमी के बाद इसमें एस्कस की फॉर्मेशन होगी। एस्कस इज वन सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एस्कस, इसीलिए हमने इसको क्या कहा था, सैक फंगस। वो एस्कस कैसे बनेगा, सी इस पूरे हाइफे में ये डिफरेंट सेप्टाज आर प्रेजेंट, जहाँ पे ये डाइकैरियोन न्यूक्लियस है। क्योंकि अब देखो ये डाइकैरियोन प्लाज्मोगैमी के बाद जो डाइकैरियोन न्यूक्लियस बना है और एस्कस को बनने में टाइम लगेगा, तो डाइकैरियोन स्टेज नज़र आएगी। तो हमें एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोन स्टेज इजीली विजिबल होती है। अब यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, दिस सैक इज कॉल्ड एस्कस। सैक एस्कस की अगर हम टर्म का मीनिंग का एक्चुअल पता करें तो इट इज वन bag like, one large bag like structure, that's what is called sac. Now these two nuclei move here in the ascus and then fuse. Here karyogamy occur. Two nucleus fuse and form diploid nucleus, and now meiosis occur। अब यहाँ क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस होगी इस एस्कस के अंदर, तो क्या हो जाएगा, 4 एस्कस आर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस, बट 4 नहीं, यहाँ 8 बनेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद इसमें क्या होगी, एक बार फिर से माइटोसिस होगी। माइटोसिस होगी तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा, 3 4 8। सो 8 एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन 1 ascus. This is ascomycetes. So this is the sexual reproduction in ascomycetes. Now examples. Examples की बात करते हैं तो इसमें कौन से example आएंगे, Penicillium. Penicillium notatum was a fungus from which first antibiotic penicillin is obtained. तो ये Penicillium fungus है। Aspergillus niger is another example. Next is Aspergillus niger. This is another example. One or more example is Claviceps. These are the examples of ascomycetes. Now we will do Basidomycetes. Basidomycetes हमारी नेक्स्ट क्लास ऑफ फंगस है, जिसको हम क्या कह रहे थे, क्लब फंगस। नाउ सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं। इसका हैबिटेट कैसा है, सो दीज आर फाउंड ऑन सॉइल, ट्रीज की स्टैम्प पे, लोग्स पे मिल रहा है हमें ये, एंड पैरासिटिक। जनरली दिस इज पैरासिटिक ऑन लिविंग बॉडीज, प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ऑन ह्यूमंस ऑल्सो। सो दिस इज द हैबिटेट। नाउ माइसीलियम, माइसीलियम की बात करते हैं इसके, तो सेप्टेट है, ठीक है। सेप्टेट फंगस में यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेप्टा प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डोलीपोर सेप्टम। क्या चीज़ है ये, सी सपोज दिस इज वन हाइफे। यहाँ पे जो हाइफे हैं इनमें जो पोर्स हैं,
हमने एस्कोमाइसिटीज में क्या पढ़ा कि माइन्यूट पोर्स हैं जिससे न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ भी न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं होगा, बट दीज पोर्स आर क्वाइट लार्ज, और अब ये लार्ज हैं तो फिर न्यूक्लियस नहीं जाएगा, उसके लिए क्या चीज़ है, सी इसको हम डिटेल में बना रहे हैं। हेयर दिस सेप्टा, ये सेप्टा है हमारा, इसमें इस तरह से बल्ज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज बल्ज स्ट्रक्चर की वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, डोलीपोर स्पोर्स आर प्रेजेंट इन अ सेप्टम्स। सो दिस इज अबाउट माइसीलियम। अगर हम इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ जनरली नहीं बनते हैं एंड दे मोस्टली रिप्रोड्यूस थ्रू द फ्रेगमेंटेशन। ठीक, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगे। एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी क्या थी, एस्कस, यहाँ क्या बनेगा, बेसिडियम। तो देखिए हम बेसिडियो स्पोर्स कैसे क्या बनाएंगे, बेसिडो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, दीज बेसिडो स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय अगेन गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। सो कैसे हो रहा है ये, सी ऑलमोस्ट इज द सेम कि ये एक हमारा हाइफे है, ये अनदर हाइफे फ्रॉम द सेम माइसीलियम, दे कम इन कॉन्टैक्ट एंड अंडरगो प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के टाइम पे यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ क्योंकि बेसिडियम बनना है, बेसिडियम के बनने के टाइम में भी कुछ टाइम गैप होगा, टाइम लगेगा, तो हमें यहाँ भी क्या डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलेगी। नाउ देन बेसिडियम इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज बेसिडियम, these are hyphae dikaryon nucleus stage। बेसिडियम प्रोड्यूस हुआ। नाउ यहाँ एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये थ्रू दिस कॉन्टैक्ट ये सभी न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस हैव अ कॉन्टैक्ट लाइक दिस क्लैम्प स्ट्रक्चर, जिस क्लैम्प की वजह से ऑल द नेबरिंग न्यूक्लियाई ऑल्सो बिकम डाइकैरियोन स्टेज, शोज डाइकैरियोन स्टेज। और सब पे अब यहाँ ऐसे बेसिडियम बनना स्टार्ट हो जाएगा। वी हैव बेसिडियम। जब बेसिडियम बनेगा तो ये स्पोर्स जो है कहाँ जाएंगे, बेसिडियम में जाएंगे, एंड दे फ्यूज इन देयर कैरियोगैमी अक्कर। नाउ इसमें कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी, सी हाउ कैरियोगैमी अक्कर। न्यूक्लियस फ्यूजेस, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई देयर। अब इसमें क्या होगी, माइटोसिस। ठीक है, बट वन थिंग हेयर दैट हैपन इज कि ये जो डाइकैरियोन बनेगा, ये बनने के बाद, ये जैसे डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, ये बनने के बाद बाहर की तरफ मूव कर जाएगा हेयर, और ऑन द एक्सोजीनियस नेचर का हो जाएगा। मीन्स बेसिडियम्स आर एक्सोजीनियस इन नेचर, बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजीनियस इन नेचर, वाइल एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनियस इन नेचर। अब यहाँ पे माइटोसिस होगी, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस होगी। यहाँ माइटोसिस नहीं होगी, सिर्फ मियोसिस होगी, एंड 4 बेसिडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ईच बेसिडियम। ये बेसिडियम्स हैं, इन पे एक्सोजीनियसली 4 बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस ऑन ईच बेसिडियम। सो दिस इज हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन बेसिडोमाइसिटीज। इसके एग्जाम्पल्स इसमें आएगा अस्टिलागो, पक्सीनिया। Puccinia is these Astilago and Puccinia are the 2 fungus that causes rust and smut type of diseases in various plants, most commonly in wheat. So Astilago, Puccinia, and one more Agaricus mushroom. The edible fungus is also grouped in, classified in Basidomycetes। किस लिए हमने इसको यहाँ रखा कि अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो पैरासिटिक हैं एंड वन इज एडिबल। सो how they are in same category because of the same type of sexual reproduction। इनमें सब में क्या बनता है, बेसिडियम की फॉर्मेशन हो रही है। Now we will study Deuteromycetes। Deuteromycetes
बहुत सिंपल, बहुत इजी, बट बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ फंगस। इसको हम क्या कह रहे हैं? फंगस, फंजाई इम्परफेक्टाई। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी में कौन सी फंगस आ रही है जो एसेक्सुअली, तो जनरली एसेक्सुअली तो कॉनिडिया से रिप्रोड्यूस कर रही हैं, परफॉर्मिंग कॉनिडिया, एंड सेक्सुअल स्टेजेस जिसके बेसिस पे हम किसी फंगस को क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो एस्कोमाइसिटीज होगी या बेसिडोमाइसिटीज होगी, सेक्सुअल बेसिस पे कर रहे थे, सेक्सुअल स्टेजेस के बेसिस पे। बट जिन फंगस में हमें अभी तक सेक्सुअल स्टेजेस आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं कि वो सेक्सुअली आइदर रिप्रोड्यूस भी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो किस बेसिस पे वो डिवाइड कर, कौन से तरीके से डिवाइड कर रही है, उनका हमें नहीं पता है, तो दे आर ड्यूटेरोमाइसिटिस इम्परफेक्ट फंगस। और मोस्टली इनका जो माइसीलियम है दैट इज सेप्टेट, हमने पढ़ा था अभी कि हायर फंगस की कैटेगरी में आते हैं, एंड ब्रांच्ड एंड हैबिटेट की अगर बात करें तो मोस्टली, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नहीं बता सकते क्योंकि ये क्लासीफाई प्रॉपरली नहीं हुई है, मोस्टली दे आर पैरासिटिक। जैसे ही इनकी सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में पता चलता है, अभी तक जितनी भी डिटेरोमाइसिटीज़ में फंगस हैं और अगर उनकी सेक्सुअल स्टेजेस को आइडेंटिफाई मिली हैं, वो आइडेंटिफाई हुई हैं, तो वो या तो एस्कोस्पोर्स बना रही है या बेसिडोस्पोर्स, तो फिर वो उनको उन कैटेगरीज में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वंस देयर सेक्सुअल स्टेजेस आर फाउंड, दे हाउ दे आर रिप्रोड्यूसिंग, उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट क्लासेस में शिफ्ट और उनकी क्लास की डिवीजन को चेंज कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंगस। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस के बारे में पढ़ लिया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द फंगस। थैंक यू।